بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک بار تقریر کی تھی رجیم چینج آپریشن کے بعد، اور خان نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کاٹا میرے اوپر لگایا ہے نا، یہ ریڈ لائن میں آپ کو مٹا کر دکھاؤں گا۔ عمران خان نے تمام تر کاٹے آج مٹا دیے ہیں، اور آج عمران خان کی فتح کا دن ہے کہ باقاعدہ طور پر شکست کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ عمران خان ایک طاقتور ترین شخصیت ہے، اور اس نے اس سسٹم کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس سسٹم کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر جناب، آج شہر اقتدار میں ہلچل تھی، پنڈی میں، یعنی کہ جو جی ایچ کیو کا شہر ہے وہاں پر یہ ہلچل تھی۔ ہلچل کیا تھی؟ دیکھیں، جو اڈیالہ سے خبر آ رہی ہے وہ اب تک کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس کی تصدیق اڈیالہ سے اور عمران خان نے خود کر دی۔ عمران خان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے؟ عمران خان راضی ہو گئے ہیں۔ عمران خان کس بات پر راضی ہوئے؟ ان کو کیا کہا گیا؟ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات میں نے رکھنی ہے، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی فیصلہ کن ملاقات کا شور ہے کہ ان کی بھی ایک فیصلہ کن ملاقات ہو گئی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس ملاقات کا احوال آپ کو بتانا ہے۔ اور پھر شہباز شریف سے بھی استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیا گیا ہے، اور پنڈی نے اس وقت لنکا ڈھا کر رکھ دی ہے۔ اور جب میں پنڈی کہتا ہوں آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی شہر نے نہیں، بلکہ پنڈی میں جو وہ طاقتور عمارت ہے اس نے اس وقت شہباز شریف کے اوپر لنکا ڈھا دی ہے، اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ کن شرائط پر ہوئے، کیا معاملات ہیں، تمام تفصیلات آپ کو بتانی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، یہ خبر کہہ لیں، آپ اس کو انفارمیشن کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ دیکھیں، آئندہ کچھ دنوں کے اندر حکومت کا پٹ سیاپا شروع ہو جائے گا، حکومت گھر جا رہی ہے، حکومت گھر چلی جائے گی، اور یہ روئیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ حالانکہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو زیادتیوں کے پہاڑ توڑے گئے، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ 1971 کے بعد جو ظلم بربریت جدیدیت ہوئی پاکستان کے اندر، یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوئی ہے، یہ حکومت نے کروائی ہے، اور پھر ان کے ہینڈلرز نے سارا کچھ کیا۔ اب یہ کہیں گے کہ عمران خان کی تو ڈیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کو ڈیل اگر انہوں نے کرنی ہوتی تو 26 نومبر کو تو اس کو ڈیل آفر ہو گئی تھی کہ آپ کو 5 دنوں کے اندر ہم بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، اور اس شام کو خان ڈیل کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑا اور سنہری موقع تھا، وہ چاہتے تو جیل سے باہر آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ ڈیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کپتان 2025 کے اندر بھی ڈیل نہیں کرے گا، اور وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے واپس آئے گا۔ آن لائٹر نوٹ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، لیکن جناب آج مذاکرات ہوئے 2 جنوری کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک طرف مذاکرات، ایک طرف آرمی چیف نے 19 ملزمان جو ہیں ان کی سزاؤں کو معاف بھی کر دیا۔ اب اصل مذاکرات جو ہیں وہ جناب پس پردہ ہو رہے ہیں۔ اب جو کمیٹیوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ صرف اعلانات تک محدود ہوگا، اور مذاکرات وہ ہیں جو عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہے ہیں۔ اب حکومت کے لیے خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ حامد رضا پاکستان تحریک انصاف کے، آپ ان کو یہ کہہ لیں کہ اپنے رہنما ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے جناب، لیکن یہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور بڑے قریبی ہیں، اور یہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، مذاکرات کے اندر آج شامل تھے۔ آج انہوں نے جو دعویٰ کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسکرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے، عمران خان جلد واپس آ رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر خان واپس آ رہا ہے۔ یہ لفظ امپورٹنٹ ہے کہ خان ڈنکے کی چوٹ پر واپس آ رہا ہے، اور طاقتوروں نے خفیہ طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم عمران خان کو منا رہے ہیں۔ اب کس بات پر منا رہے ہیں وہ آپ آگے چل کر آپ کو وہ بھی خبر جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب آسمہ اشراری صاحبہ کہتی ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، عمران خان کا دباؤ کام کر رہا ہے، اور عالمی دباؤ بھی اس وقت کام جناب کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، یہ بھی مذاکرات کے اندر شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی امریکی پریشر نہیں ہے، ملزمان کو سزا اور معافی دینے کا فوج کا اپنا پروسیجر ہے۔ 9 مئی کے اوپر تو شورا مچا رہے تھے، 9 مئی ہو گیا، 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب یہ بات فوج پر ڈال رہے ہیں کہ فوج کا اپنا پروسیجر ہے، اور باقی لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، شاید ان کو بھی ریلیف مل جائے۔ اب یہ آپ اندازہ کریں کہ شاید ان کو بھی ریلیف مل جائے۔ 19 ملزمان کو ریلیف کیوں ملا؟ یہ عالمی دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا، اور پھر اب ان کو ریلیف تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی جو سویلینس کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے اس کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، اب ان کو باقیوں کو سپریم کورٹ سے ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب یہ اس کی تصدیق جو ہے وہ رانا ثناء اللہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی جب تحریری مطالبہ دے گی تو ہم انہیں تحریری طور پر آگاہ کریں گے۔ آج تحریری طور پر جناب انہوں نے
इस पर पीटीआई ने अपना मुतालबा भी दे दिया। और आज उन्होंने कहा कि बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बहुत अच्छी बातें की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मामला बातचीत से हल होने चाहिए। एक सवाल कि क्या बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल होने की ऑफर की गई है, उसके जवाब में राणा सलमान ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी ऑफर नहीं की गई। अब जाहिर है शहबाज शरीफ तो ये ऑफर नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ के पास कोई ताकत नहीं है ना, वो तो नहीं कहेंगे कि खान को बनीगाला मुंतकिल कर दें। ताकतवर कौन है? उन्होंने इतना भी ऑफर की, खान साहब ने इसकी तस्दीक भी की। और उन्होंने कहा कि पीटीआई वफ्द ने आज अपने कारकुनान की रिहाई की बात की है। हमने कहा है कि रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है, ये मामला हमारे हाथ में नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत कारकुनों की रिहाई में रुकावट ना बने। राणा सौना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज 9 मई की कुछ मुलजमान की सजाएं माफ हुई हैं, क्या ये मुज़ाकरात का नतीजा है? ये उनसे सवाल पूछा गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फौज का अपना प्रोसीजर है, अपने निज़ाम के तहत सजा देती है और माफ करती है, बाकी लोगों की अपीलें जो हैं वो भी ज़ेरे समात हैं। अब ये एक चीज़ तो जनाब आपके सामने है। और फिर दूसरी तरफ सेनेटर इरफान सदीकी वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी ने जो इमरान खान की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। तो कर रहे थे कि पीटीआई कमेटी तहरीरी मुतालबात जो है वो लाएगी। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ साबित हो सकती है। अगर मुज़ाकरात चलते रहे तो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। अपोजिशन ने मुशावरत के लिए वक्त ज़रूर मांगा है और अपोजिशन इमरान खान से मुशावरत करेगी, तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ्ता आगे चले गए हैं और अपोजिशन कमेटी के अरकान की गुफ्तगू में कोई तरक्की नहीं थी। मुज़ाकरात से पहले एक बात तय की थी कि बाहर के मामलात, मुकदमात या फैसला, उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। हमारे तरफ से मुज़ाकरात के अमल में कोई इशू नहीं आएगा। अब जनाब ये एक चीज़ है, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटियों के बाद अलामिया जारी हुआ, आप तो इमरान खान का नाम नहीं ले सकते थे। इमरान खान के नाम के ऊपर तो पाबंदी थी। वहां से लेकर आज इमरान खान साहब लिखा गया है मुज़ाकराती कमेटी के उस इलामिया के अंदर, रेड लाइन मिट गई है। अब मुज़ाकराती कमेटी का जो लामिया जारी हुआ है उसमें तकरीबन ये कोई 6 से 7 मरतबा इमरान खान साहब लिखा गया है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का पीटीआई ने मुतालबा किया है। फिर कहा गया कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और ये रहनुमाई हासिल करने का मौका भी फराहम करेंगे। इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश किया जाएगा, पीटीआई ने कहा। अब फिर उस इलामिया में फिर कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। इमरान खान साहब, इमरान खान इज कमिंग बैक। इमरान खान जो है ये हवाओं का रुख जो है बदल रहा है, जो आसमा शाही साहिबा ने भी कहा, लेकिन खान जो है वो डील जनाब बिल्कुल नहीं करेगा। अब मैं आपको जो अब खबर देना चाहता हूँ, ये तो मुज़ाकरात की खबर थी कि ये जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब को ऑफर की गई कि जनाब आप बनीगाला जो है मुंतकिल हो जाए। खान ने आज उसकी तस्दीक भी की। मैंने आपको बताया, खान को कहा गया कि आप बनीगाला जो है वो जनाब मुंतकिल हो जाएं, फिर हम इसके ऊपर कोई ना कोई हल जो है वो निकाल लेते हैं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपना जो है वो रद्द-ए-अमल दिया है। वो आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर जो तस्दीक हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान ने कहा कि एक अटक जेल में मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। उसने कहा मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा। मियाँ नवाज साहब तो वो मुल्क से बाहर चले गए थे डील करके। इमरान खान को 3 साल मुल्क से बाहर जाने की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूं। फिर इमरान खान ने कहा कि डीसीआई एसपीआर 9 मई पर गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा असूल यही है कि जिससे सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुराई, उसने ही 9 मई जो है वो करवाया। अब इमरान खान साहब को जब ऑफर दी गई, खान ने इसकी तस्दीक कर दी। खान अब बनीगाला बहुत जल्द जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं और बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश पर इमरान खान की जानिब से बात कर दी गई है कि तमाम कारकुनान की रिहाई तक अपनी रिहाई से मुतालिक बात नहीं करूंगा। पहले शाह महमूद कुरैशी और जितने लोग हमारे जेलों के अंदर हैं उनको रिहा करें, फिर उन्होंने कहा कि तो फिर जेल से मुंतकली से मुतालिक पेशकश पर सोचूंगा। अब हामिद रजा साहब ने भी बात की है कि इमरान खान जो है वो जल्द बाहर आ रहे हैं और हम उनको मनाने की कोशिशें कर रहे हैं कि खान साहब स्टेप बाय स्टेप आप पहले बनीगाला मुंतकिल हो जाएं, वहां से हम आपकी रिहाई का ऐलान करवा देंगे, बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अडियाला जेल से आप निकलें और आप जो है वो आपकी सिक्योरिटी के मामला में और बहुत सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा फेस सेविंग उनसे मांगा जा रहा है कि आप सिर्फ अडियाला जेल के बाहर जो है वो लोगों का जमा गफीर इकट्ठा ना करें, आपको हम हाई सिक्योरिटी के अंदर बनीगाला मुंतकिल कर देंगे, आप बनीगाला आ जाइएगा। और फिर इमरान खान साहब को कहा गया है, वो कहते हैं कि बाकियों को रिहा कर दें, फिर मैं इस पेशकश के मुतालिक जो है वो सोच सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात 31 जनवरी तक चल रहे हैं और ये डेडलाइन है, और 31 जनवरी तक इमरान खान साहब
जेल से बाहर होंगे। ये एक मैं आपको जो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब दे रहा हूँ। तो खान साहब ने अपनी ऑफ़र जो है तमाम कारकुनों की रिहाई से इससे मशरूत जो है वो कर दी है। आज जो है 19 मुलज़मान रिहा हो गए हैं, बाकी भी रिहा होंगे, बाकी खान के सारे लोग बाहर बाहर निकलेंगे। तो ये जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी जो इस्तीफ़ा जनाब तलब कर दिया गया, वो खबर भी आप सुन लें। जावेद चौधरी ये एस्टैब्लिशमेंट के घर के बंदे हैं और ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत से बाहर बैठकर शायद ऊ कर रहे हों। अब ज़ाहिर है इनके जो है वो एहतजाज की बात कर रहे थे, जिसके बाद इनकी मीम्स बन गई हैं। तो वो हुकूमत से बैठ कर, आप देखें ये जावेद चौधरी जब बात कर रहे हैं तो मुज़ाकरात तो कामयाब हो रहे हैं, आपके सामने चीज़ें चल रही हैं कि हुकूमत वालों के हाथ में कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त बैकडोर्स चैनल्स में वो एक्टिव हैं, उसमें इमरान खान साहब ने बात कर दी कि ठीक है जनाब मैं जो है वहाँ पर जा सकता हूँ, और बहुत चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ बाहर बैठे हों और ऊ करके बता रहे हों कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। उनको बता दिया कि जनाब घर जाए। इमरान खान साहब आ रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब से भी इस्तीफा जनाब लिया जाएगा, और इमरान खान की शराइत पर ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं। और आज जो आर्मी चीफ की मुलाकात की खबर है, SIFC के प्लेटफॉर्म पर आज जो है वो जनाब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म समेत सिविल और अस्करी का जो है मौजूद थी। जनरल आसिम मलिक DGI, उसके अलावा आर्मी चीफ इसके अंदर थे, बाकी चारों वज़राए आला थे। जनाब उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसला करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रवाना की बुनियाद पर शहादतें जो है वो दे रही है। अब ये पूरा इलामिया है। वो बात कर रहे थे कि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है, और 12 चनार अमन माहदे पर तमाम फ्रीकों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 12 चनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा दिलखराश वाकया क़यामत तक नहीं होना चाहिए। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के पहले 9 मई के हवाले से लोगों को माफ़ करना, फिर 2 जनवरी को आज ही मुज़ाकरात हुए हैं। आज विपक्ष कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क्यादत एक पेज पर आज बैठी हुई थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, बाकी चारों सूबों के वज़राए आला, सिविल और अस्करी क्यादत, DGI साहिब। तो ये मुलाकात आप सारों को डॉट से डॉट कनेक्ट करके देख लें तो हवाओं का रुख जो है बदल रहा है, और अब जल्द आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान इस महीने जेल से बाहर होंगे। आलमी दबाव भी काम कर रहा है, इमरान खान का दबाव जो है वो भी काम कर रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस नंगा पर लाजमी है। लखनऊ आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।